Hello students, now today we will discuss concept of acceleration. Basically concept of acceleration, this acceleration is related with the concept of velocity. This acceleration is taken as rate of change of velocity. Rate of change of velocity. So basically rate refer to the time. So the rate at which velocity is changing. So in simplified form, it can also be defined as it is defined as rate of change of velocity of body with time. Rate of change of velocity of the body with time. So acceleration of a body is a measure of change in velocity per unit time. यानी change in velocity varying with the time. So acceleration को हम symbolically लिख रहे हैं A से, and it is taken as change in velocity per unit time, यानी total time taken. So if we take, let u is the initial velocity. किसी भी बॉडी के मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसीडर किया है एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी. देखिए यहाँ हम सिर्फ एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट कैन बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. सो लेट टोटल टाइम टेकन इज t. So here acceleration, this can be taken as change in velocity v minus u upon t. So now this is the basic formula for acceleration. So whenever you have to learn the formula in numericals, this is the formula for acceleration. From this basic concept of acceleration, we can also take that acceleration of a body can be positive or negative. So acceleration is positive. Positive means, what do you mean by positive? See, if the body is moving, अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से, एंड इसकी स्पीड बढ़ जाती है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर तक, तो ये हो गया u and this is your v. So basically when final speed is more as compared to initial speed, so in that case acceleration, यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, this is 20 minus 5 15, ये पॉजिटिव वैल्यू है. So यहाँ हम कंडीशन लेंगे that acceleration will be positive if final speed is greater than initial speed, then only acceleration will be positive and acceleration will be negative. How can we take acceleration to be negative? Like इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. जैसे कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे कार इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होता है और उसके बाद एक्सेलरेट करने पर स्पीड बढ़ती है, तो जब स्पीड बढ़ रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. लेकिन सडनली जब हमें ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं तो ये इस इंक्रीज स्पीड से स्पीड रिड्यूस होने लगता है और हो सकता है रेस्ट पर आ जाए तो वो स्पीड ज़ीरो भी हो जाती है. सो इन दैट केस इफ़ वी से लेट द स्पीड ऑफ मोशन इज़ इनिशियली 30 किलोमीटर पर आवर. मान लो ये पहले 30 किलोमीटर पर आवर है और उसके बाद इसकी लेट इट बी u एंड फाइनल स्पीड ब्रेक लगाने के बाद इसकी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई विद इन अ पर्टिकुलर टाइम t. टाइम की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मे बी 10 मिनट, मे बी 20 मिनट, मे बी 1 आवर. सो नाउ एक्सेलरेशन अब इस केस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इनिशियल स्पीड इज मोर देन द फाइनल स्पीड. सो हेयर इनिशियल स्पीड यानी कि फाइनल स्पीड इज़ लेस देन इनिशियल स्पीड. v की वैल्यू u से कम है, तो अब इस फॉर्मूले में देखिए जब v की वैल्यू u से कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी. सो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. सो दिस इज द कंडीशन फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन. And this negative acceleration is also termed as retardation. Retardation means negative acceleration. So many a times numericals में या concept में retardation word use होता है. Retardation means negative acceleration. Now after this SI unit
of acceleration. What will be SI unit of acceleration? See, acceleration is change in velocity per unit time. अब velocity यहाँ पर न्यूमरेटर में वेलोसिटी है तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का यूनिट सेकेंड. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसको आप लिख सकते हैं m⁻⁻2 और m डिवाइड बाय s2. सो दिस इज द SI यूनिट. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एग्जाम्स में डायरेक्टली 1 मार्क के क्वेश्चन में SI यूनिट पूछ सकते हैं. Now, after this basic concept of acceleration, next we will discuss what is uniform acceleration. Uniform acceleration. देखिए, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया था वैसे ही हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करेंगे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग समझें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होना. अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय equal amount. Velocity of a body changes by equal amount in equal interval of time. Interval of time. If velocity of body changes by equal amount in equal interval of time, then only this you can say acceleration will be uniform. So body is said to be uniform, having uniform acceleration if velocity changes by equal amount in equal interval of time. And here let me explain it with example. Suppose if we are taking time in second and velocity in meter per second. So if we are taking it after an interval of 5 seconds each, right? First of all, just at the starting time, let its speed is velocity is 0. After 5 seconds, we are observing the speed is 10 meter per second. After 10 seconds from the starting point, its speed has been given by 20 meter per second. At 15 seconds, speed is 30 meter per second. And at 20 seconds, speed is 40 meter per second. तो अब देखिए यहाँ पर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, दैट वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट. देखिए ये टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड्स और ये स्पीड का इंटरवल, वेलोसिटी का इंटरवल है 10 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही नेक्स्ट टाइम इंटरवल हुआ 5 सेकेंड और ये स्पीड का इंटरवल डिफरेंस हो गया फर्दर 10 मीटर पर सेकेंड. तो आप कोई भी इंटरवल देख लीजिए, हर इंटरवल में वेलोसिटी और स्पीड इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है. सो व्हेन वेलोसिटी इज चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो अब अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10/5. दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हर एक इंटरवल के लिए, चाहे आप फर्स्ट इंटरवल लो, सेकेंड इंटरवल या कोई भी एक इंटरवल लो, आप रेशियो देखोगे इट कम्स आउट टू बी सेम. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज हैविंग द कांस्टेंट और सेम वैल्यू. Now after uniform acceleration, let me define another term, non-uniform acceleration. इसमें बेसिक पॉइंट क्या रखना है, हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी एंड टाइम की बात करेंगे. So here first of all I will give its definition, then I will explain. A body is said to be in a body is said to have non-uniform acceleration when velocity changes by equal amount in unequal interval of टाइम. देखिए 2 फैक्टर्स हैं, टाइम एंड वेलोसिटी. एंड वेलोसिटी अगर इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है तो टाइम क्या है, अनइक्वल है. और इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल लिया था हमने, अब अनइक्वल ले लेते हैं, अनइक्वल अमाउंट इन
equal interval of time. सो बेसिकली क्वांटिटी हमने वही लेनी है, टाइम एंड वेलोसिटी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में या तो वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है और टाइम इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, टाइम अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। सो द बॉडी विल हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट वी अंडरस्टैंड इट विद वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सपोज हम लेते हैं टाइम इन सेकेंड, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सप्लेन किया है। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, टाइम लिया हमने, मान लो हम लेते हैं आफ्टर टाइम ऑफ 2 seconds each. Let initial speed is 0. At 2 seconds speed is 1 meter per second. At 4 seconds speed is 4 meter per second. At 6 seconds speed is 9 meter per second. At 8 seconds that speed is 16 meter per second. तो अब इस केस में आप देखिए कि अगर आप कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हो, ये देखिए पहले चेक कीजिए, इक्वल है, टाइम का इंटरवल इक्वल है, यानी 2 सेकेंड्स का डिफरेंस है। लेकिन वेलोसिटी या स्पीड जो आप देख रहे हो, यहाँ 1, दिस इज 3, दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्पीड अनइक्वल अमाउंट में वेरी कर रही है। इट मीन्स टाइम हमने इक्वल लिया है। तो उस केस में अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हर इंटरवल के लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। लाइक 0 to 2 seconds के लिए निकालोगे तो हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप दिस इज़ योर 2 to 4 seconds के लिए निकालोगे तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल वेलोसिटी है 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम तो 2 seconds ही है। अब ये हो जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो मैं एक लास्ट इंटरवल ये वाला ले लूँ तो 6 to 8 सेकेंड टाइम तो हो गया 2, लेकिन 9 to 16 सेकेंड पर स्पीड क्या हो गई 7। तो अब यहाँ पर हो गया 16 - 9 बाय 8 - 2, 8 - 6 2। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, देखिए यहाँ से दिस इज 7/2, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। सो इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टर्म क्लियर कर रही है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं रहती है, इट कॉन्टिन्यूसली गो ऑन चेंजिंग। नाउ to apply this concept of acceleration, let we do this solved example. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. यानी starting from a stationary position, then by pedaling his cycle he is attaining a speed velocity of 6 meter per second in 30 seconds. देखिए जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमें गिवन है हम इनको पेन डाउन करते जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल स्पीड u की वैल्यू 0 है, अब t की वैल्यू 30 सेकेंड्स के बाद फाइनल स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, यानी यहाँ 2 सिचुएशंस हैं, पहले एक्सेलरेट होना, अब नेक्स्ट जो मैं रीड कर रही हूँ ब्रेक लगाना, इसका मतलब रिटार्ड होना। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स such that velocity of bicycle comes down to 4 meter per second, यानी अब 6 मीटर पे जब स्पीड थी तब ब्रेक लगाने के बाद स्पीड को रिड्यूस किया गया 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 seconds। यानी यहाँ पर हमें 2 इंस्टेंट लेने हैं, 2 इंटरवल लेने हैं। फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा एंड फॉर नेक्स्ट यू कैन से 5 सेकेंड्स में आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। देखिए यही पॉइंट पूछा है। तो अभी जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, स्टेशनरी पॉइंट, देन दिस वेलोसिटी एंड टाइम, ये एक इंटरवल के लिए हम सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी सिचुएशन भी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन को, फर्स्ट पोजीशन को सॉल्व करते हैं। So as per given statement that starting from a stationary position, let u is 0. Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second within a time of 30 seconds. You can see from your NCERT. तो अब इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन होगा v minus u upon t. This is your 6 minus 0 upon 30 and this is 6/30. This is 1/5
और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अब इस केस में फर्स्ट सिचुएशन में हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब नेक्स्ट पॉइंट, यानी इसके आगे बोला है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स का मतलब कि उस इंस्टेंट पे जब इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड थी, तो सेकेंड इंस्टेंट के लिए ये क्या बन जाएगी, इनिशियल स्पीड। यानी मोशन में हमने पूरे मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि जैसे फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए फाइनल स्पीड हो गई है, अब नेक्स्ट कितने टाइम के लिए, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए। तो इनिशियल स्पीड अब कौन सी लेंगे कि जो यहाँ पर फाइनल स्पीड थी, तो अब यहाँ पर ये ट्रीट होगी सेकेंड केस में इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड कितनी हो गई, क्योंकि ब्रेक लगाए हैं और फाइनल स्पीड रिड्यूस हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। रिड्यूस हो रही है कि हमें पता चल रहा है क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं। तो अब एक्सेलरेशन निकालिए, कितना होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो बेटा देखिए यहाँ पर v की वैल्यू 4, u की वैल्यू 6 और टाइम हो गया 5 सेकेंड। सो ये हो गया -2/5, दिस इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन ऑफ द cyclist in the first case is 0.2 meter per second square, and when the brakes are applied in that particular case you can say acceleration is -0.4 meter per second square. So this is quite simple concept. हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी केसेस हो, उन्हें हमें क्लियरली समझना चाहिए। After this, let me take this blue patch questions. First question that I have already discussed. When will you say a body is in uniform acceleration? Uniform acceleration की definition मैंने अभी बताई है, non-uniform acceleration भी discuss की है, तो you will do it from there. Next two are numericals. जैसा मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया है वैसे ही ये दोनों सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रिड्यूस हो रही है 5 सेकेंड्स में। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो सिंपली यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड वर्ड यूज़ किया है तो हम स्पीड ही बोलेंगे। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड दिया है और टाइम दिया है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन निकालना है। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो देखिए इनिशियल स्पीड इज़ हेयर 80 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल स्पीड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज़ गिवन टू बी 5 सेकेंड. So see here speeds have been given in kilometer per hour but time is in seconds. तो what you have to do, या तो आप स्पीड्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए या टाइम को आर में कन्वर्ट कीजिए. इसमें आप कोई भी केस ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर आप स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियोज़. एंड हेयर अगर आप टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो यू विल डिवाइड हेयर 5 सेकेंड बाय 3600 so that you will get it in hours. So I am just converting it in meter per second. तो meter per second के लिए I will just multiply it by 5/18 and here also multiply it by 5/18. Now you can do the calculations. It will come out to be approximately 22.2 meter per second and this V it will come out to be 16.6 meter per second. You can check the calculation part. Time is in second. Now acceleration will be V minus U upon T. So it is your 16.6 minus 22.2 divided by 5 and क्योंकि यहाँ पर final speed less है as compared to initial speed, so when you will just take it will come out to be negative and here it will come out to 5/5, so it is your minus 1.12 meter per second square. So this will be the acceleration and negative sign क्या indicate कर रहा है, that here is retardation.
एक्सेलरेशन नेगेटिव का टोटल मीनिंग ही क्या है? दिस इज रिटार्डेशन. Now next blue patch question. Question number 3. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये दिस विल बी एज अ होमवर्क फॉर यू पीपल, यू कैन ट्राई इट. ट्रेन कहाँ से स्टार्ट कर रही है? स्टेशन से. तो स्टार्टिंग है, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? इस केस में 0 हो जाएगी. एंड आफ्टर 10 मिनट्स फाइनल स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम दिया है 10 मिनट्स. तो बेटा देखिए इस केस में भी आपको एक्सेलरेशन ही निकालना है, वही फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए. तो फर्दर क्योंकि टाइम मिनट में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो बेटा इनको यूनिट सेम बनाना है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यूनिट का कन्वर्जन बता देती हूँ. एक्सेलरेशन यू विल डू बाय योर सेल्फ. सो इस केस में इनिशियल स्पीड है 0 और फाइनल स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है 10 मिनट. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के यूनिट सेम सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. तो इस केस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, जिससे ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में. डू द कैलकुलेशंस फॉर इट. अब टाइम को हम मिनट्स में नहीं रख सकते हैं, तो इसको भी हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है 600 सेकेंड. तो अब लगाइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी. तो v यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, u 0 है, t यहाँ से. तो वट एवर यू आर गेटिंग दिस विल बी योर आंसर. जस्ट डू द कैलकुलेशन पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. देखिए अभी हम जो भी मोशन को डिस्कस कर रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ अब हमें इनको ग्राफ की फॉर्म में स्टडी करना चाहिए. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ये कहूँगी, जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने वर्टिकल बार ग्राफ्स आते हैं, या फिर आप देखते हैं बेसिकली ग्राफ्स क्या होते हैं, जैसे आजकल कोविड का स्प्रेड है तो कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि पर डे या कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर या लास्ट मंथ कितना केसेस अप या डाउन हो रहा है, तो वो ग्राफ में लाइन आपकी अप डाउन नज़र आती है. तो बेसिकली जब हमें ग्राफ की फॉर्म में किसी भी सिचुएशन को डिपिक्ट करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको मालूम है कि नॉर्मल जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास एक्सिस होते हैं, लाइक दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. तो अब यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट्स चूज करते हैं, यानी हम पॉजिटिव एक्सिस एंड नेगेटिव एक्सिस, ये दो एक्सिस के बीच में हम सारे ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अब इस केस में सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट जो चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इन एक्सिस के अलोंग क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम दो कैटेगरी में इसको डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो टुडे आई विल कवर दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब अगर आपको एक सिचुएशन दी है कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, मैं रेस्ट माने बॉडी स्टेशनरी है, यानी अपने पर्टिकुलर किसी पॉइंट को अटेन करके वहीं पर रह जाए, उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो. जैसे हम ये कहें कि मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब एक पर्सन ओ से ए तक पहुंचा, उसमें इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, और बाद में अगर हम नोट करते हैं 10 सेकेंड्स के बाद, 20 सेकेंड्स के बाद, 30 सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये इसी ए पॉइंट पे रहा. तो इसको जब मुझे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक तो ये डिस्टेंस एक्सिस चाहिए, दिस इज डिस्टेंस एक्सिस. दूसरा चाहिए टाइम एक्सिस. तो उस केस में क्या होगा कि मान लो इनिशियल पोजीशन यहाँ है और ये टाइम एक्सिस है, तो इस पोजीशन को मैं जनरल पोजीशन मान लो ले रही हूँ ए. इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ये मेजरमेंट ओरिजिन से 10 मीटर है, अदरवाइज जनरल केस में ये कहीं से कुछ भी वैल्यू हो सकती है. अब अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या देख रहे हैं, 10 सेकेंड्स के बाद भी इसकी वैल्यू 10 मीटर ही है, 20 सेकेंड के बाद भी वैल्यू 10 मीटर ही है, 30 सेकेंड्स के बाद भी वैल्यू 10 मीटर ही है. तो आप देखेंगे कि यहाँ से
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो गया, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसके ऊपर ब्लू पैच में क्वेश्चंस भी गिवन है, तो ध्यान से समझिए। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं, या तो बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ पूछ लेंगे, या आपको पूछा जाएगा कि when the graph is a straight line parallel to time axis in distance time, what does it represent? दोबारा बोल रही हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि when distance time graph you are plotting and graph is a straight line पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये कौन सी सिचुएशन को इंडिकेट करती है, इसका मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसे हम कहेंगे व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस। तो आपको बॉडी एट रेस्ट पे क्या ध्यान देना है, दिस ग्राफ एंड दिस लाइन, ये आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट करना है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग होता है दैट मीन्स स्पीड रिमेन टू बी सेम और कांस्टेंट। स्पीड सेम होने का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अभी तक हमें यही पता है। अब इसको हम ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम एक डाटा लेते हैं कि मान लो हम टाइम लेते हैं सेकंड्स में और पोजीशन डिस्टेंस लेते हैं मीटर में। तो अगर हम ये कहते हैं कि मान लो टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे बॉडी इनिशियली रेस्ट पर ही है, 5 सेकेंड्स के बाद मान लो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 10 सेकेंड्स के बाद इसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 15 सेकेंड्स के बाद इसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और एक और ले लेते हैं पॉइंट, 20 सेकेंड के बाद इसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये बेसिकली सारा ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से रहेगा। तो इस केस में अब ये इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक्सिस पर प्लॉट करके देखते हैं। तो हम इसको, आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा इसको। ये हो गई डिस्टेंस एक्सिस और ये हो गई टाइम एक्सिस। सबसे पहले स्केल की हेल्प से आप स्केल को इक्वल डिवाइड कीजिए। टाइम ले रहे हैं तो 0, 5, 10, 15, 20। अब डिस्टेंस ले रहे हैं तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया 10, इक्वल प्रोपोर्शन लेंगे 20, 30, 40। देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको सिर्फ जनरल ग्राफ बनाना होगा आगे। अभी समझने के लिए हम इसको कवर कर रहे हैं। 5 सेकेंड्स पर पोजीशन हो गई 10 मीटर। 10 सेकेंड्स के बाद पोजीशन हो गई 20। देखो टेबल में जो डाटा है मैं उसी को ही प्लॉट कर रही हूँ। 15 सेकेंड पर पोजीशन हो गई 30 मीटर। यानी आप इसमें से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखिए कैसे इसको लोकेट करते हैं। जैसे 10 सेकेंड पर आप देख रहे हैं तो इसके सामने कौन सा पोजीशन है। ऐसे ही 15 सेकेंड पर जब आप देख रहे हैं, आप वर्टिकल डॉटेड लाइन लगा के देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो गई 30। ऐसे ही 20 सेकेंड या 40 मीटर किस पर है, कौन से टाइम के ऊपर है, 20 सेकेंड पे। यानी हम किसी भी एक पॉइंट पे हम जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, और फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम भी देख रहे हैं। जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमने इन सबको एनसर्कल कर दिया। अब नाउ यू कैन टेक वन स्केल एंड जस्ट जॉइन दीज पॉइंट्स। सो व्हेन यू विल जॉइन, देखिए जब आप एग्जैक्टली स्केल से बनाएंगे तो ये पॉइंट्स प्रॉपर आएंगे बिल्कुल। तो उस केस में ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पर जनरल केस में देखते हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि इस पर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखो आप देख सकते हो हर इंस्टेंट पे स्पीड अगर हम देखें तो 10/5 दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20/10 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 30/15 2 मीटर पर सेकेंड, 40/20 2 मीटर पर सेकेंड। किसी एक पॉइंट पर भी देख सकते हैं या किसी दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेकर भी देख सकते हैं। हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कहीं पर भी आप फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ले लो, बीच के दोनों पॉइंट्स ले लो, कोई भी पॉइंट्स ले लो, यहाँ पर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ देखो जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट का रेशो निकाला है डिस्टेंस एंड टाइम का। आप चाहे मैं आपको एक केस करके दिखाती हूँ जिसमें मैं कोई दो पॉइंट्स चूज़ करूँ, A एंड B। अब A एंड B मैंने लिया है, तो बेसिकली आप कहेंगे डायरेक्टली ये मैंने कैसे ले लिया। ग्राफिकली मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ तो सिंपल मैंने किया,
एक्स अपॉन टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो ग्राफ में हम कैसे लेंगे, ए और बी पॉइंट लिया है मैंने। अब ए और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, 10 एंड 30, और करस्पॉन्डिंग टाइम है 5 एंड 15। तो आपको एक रूल याद रखना है कि इस ग्राफ की हेल्प से हम एक क्वांटिटी निकालेंगे जिसको मैं नाम दूंगी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान से याद रखना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता है हमेशा वेलोसिटी या स्पीड। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप लेंगे कोऑर्डिनेट्स डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस, यानी इसको एक्चुअली बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और सिंपल टर्म्स में कहूँगी मैं कि ये 30 यानी ये लार्जर वैल्यू है, दिस इज़ द बिगर वैल्यू, यानी बिगर इन द सेंस हम कहें कि इसकी पोजीशन ज़्यादा है, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय, अब देखिए 30 के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 15, 10 के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 5, तो ये हो जाएगा 20/10, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दोबारा से देखिए कि जब भी हम ले रहे हैं एक्चुअली वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला तो हमें पता होता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब यहाँ x2 क्या है 30, x1 क्या है 10, ऐसे ही t1 क्या है 5 और ऐसे ही t2 क्या है 15। तो ये वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली जब हमने वैल्यू पुट करके निकाला, हम देख रहे हैं स्पीड आ गई सेम। आप चाहें तो कोई भी दो अलग अलग पॉइंट लेकर देखेंगे, हर पॉइंट पर स्पीड सेम आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो अगर हम जनरल केस में ड्रॉ करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था वो मैंने सिर्फ डेटा लेके समझाने के लिए बनाया था, अदरवाइज आपको ड्रॉ सिर्फ यही वाला करना है। इस ग्राफ के ऊपर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल को मैं थीटा से डिनोट करती हूँ, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। अब मैथ्स में आप नए फंक्शन सीखेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे, लेकिन अभी हम आपको एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे कि मान लो इसी तरीके के अगर हमारे पास दो बॉडीज़ दी हुई हैं, मान लो 2 कार्स हैं और उन दोनों कार का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, लाइक कार A एंड कार B, दिस इज A, दिस इज B, right? And this angle is θ2 and this is θ1। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इनकी वैल्यू दी भी हो सकती है। अब हमें एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ से रिलेट करना है, पर वो कॉन्सेप्ट अभी आपका कवर नहीं हुआ है मैथ्स में। सो हम बिल्कुल बेसिक और जनरल पॉइंट दे रहे हैं कि आपको बताना है दैट इफ़ graphical representation of distance and time for A and B car are represented here, which car has more speed, which car has more speed। तो उस केस में हम कहेंगे, ध्यान से देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा है कौन सा एंगल ग्रेटर है। जिस कार का हॉरिजॉन्टल के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ एंगल ज़्यादा होगा, यानी किसका एंगल ज़्यादा है, θ2 ग्रेटर देन θ1। जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। स्लोप किसका ज़्यादा होगा, ए सफिक्स किसके लिए है, ए कार के लिए। स्लोप ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप हमें क्या दे रहा है, अभी हमने बताया था स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देगा वेलोसिटी और स्पीड। अब स्लोप को हमने पहले पॉइंट्स के लिए लिया था, लेकिन देख रहे हो यहाँ एक्सिस पर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो उस केस में बस हमें जनरल देखना है कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी की स्लोप, उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ A will be और speed of A will be greater than B। This is important question, hot question के अंडर आता है ये वाला, and this is very important concept। एक नया concept आपके सामने आया है जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि जिस ग्राफ का एंगल ज़्यादा होगा
उसी ग्राफ का स्लोप भी ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट जनरली कंपैरिजन में यूज़ होता है, या अगर इसकी वैल्यू गिवन हो उसकी टर्म्स में भी यूज़ होता है। अभी आपको वैल्यू वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जनरल क्वेश्चन मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो ये 30 दिया हो, ये 60 दिया हो। फर्दर इनको सॉल्व करने का भी एक फार्मूला होता है। जस्ट एक्चुअली फार्मूला में लिख रही हूँ, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा। एक्चुअल फार्मूला स्लोप का होता है ये एंगल की टर्म्स में, बट अभी आपको 10 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज नहीं है, सो इसीलिए हम जनरल कह रहे हैं कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी का स्लोप ज़्यादा होगा, उसी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। Now if we are taking the graphical representation of non-uniform motion, non-uniform motion में अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, जिसको मैं नाम देती हूँ वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल माने जिसकी वैल्यू वेरी करते रहना है। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हम कैसे लेंगे, तो मान लो सबसे पहले मैं एक डेटा लेती हूँ। मान लो हमने टाइम लिया सेकेंड्स में और डिस्टेंस लिया मीटर में। हमने टाइम रिकॉर्ड किया हर 2 सेकेंड्स के बाद और डिस्टेंस, लेकिन इनिशियली हम कार ले लेते हैं, कार इनिशियली एट रेस्ट। 2 सेकेंड्स के बाद इसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर। 4 सेकेंड के बाद इट हैज़ कवर डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 6 सेकेंड के बाद इट हैज़ कवर डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड 8 सेकेंड के बाद इट हैज़ कवर डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। जस्ट 4-5 पॉइंट्स लेके देखे हमने, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अब इसी डेटा को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो टाइम एक्सिस एंड डिस्टेंस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वल डिवीज़न कर लेते हैं। टाइम इज़ 2, 4, 6, 8 एंड डिस्टेंस इज दिस इज़ 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंटरवल में यानी टाइम तो आपका इक्वल अमाउंट 2 सेकेंड्स पे चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन अनइक्वल नज़र आ रही है। अब डिफरेंस लेके देखो, इधर 1 मीटर, इधर 3, इधर 5, इधर 7, अलग अलग है। तो अब स्केल कैसे चूज़ करेंगे? स्केल हम ले सकते हैं, सपोज हम यहाँ ले लें 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 15, दिस इज़ 20। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन यू कि कैसे लेना है। अब 0 पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पर बॉडी रेस्ट पर है। 2 सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन हो गई 1 मीटर, यानी थोड़ा सा अप हो जाएगा। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 5 स्केल लेकर दिखा सकते हो। 4 सेकेंड पर ये पोजीशन हो गई 4 मीटर, यानी यहाँ 4 मीटर कहीं यहाँ होगा, तो आप परपेंडिकुलर यहाँ लेके इसकी कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 6 सेकेंड पर पोजीशन हो गई 9, तो 9 एग्जैक्टली 10 से थोड़ा सा नीचे होगा। आप इसको जब स्केल से प्रॉपर प्लॉट करोगे देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन 8 सेकेंड पर 16, अब 16 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा। इक्वल पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब देखिए ये जो पॉइंट्स आए हैं, क्या मैं इनको स्केल की हेल्प से मिला पा रही हूँ? नहीं, कोई 2 पॉइंट ही मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इसको फ्री हैंड से हम मिलाते हैं, तो ये क्या हो गया? कर्व आ गया। यानी इट मीन्स ये जो आपने प्लॉट किया है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट मीन्स स्पीड एट ईच इंस्टेंट विल बी डिफरेंट, वेरिएबल। यहाँ हम स्लोप एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं जिसमें आपको हमने पहले बताया था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ग्राफ को ही समझना है। स्लोप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि आपको मैथ्स में अभी टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड अनइक्वल अमाउंट में चेंज होती है। आप चाहें तो हर इंस्टेंट पे स्पीड निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ हो गई 1/2, 4 सेकेंड पर हो गई 1, दिस इज़ इन मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में तो 0 है, फिर उसके बाद ये हो जाएगी 9/6, फिर हो जाएगी 16/8, यानी हर पॉइंट पर ये स्पीड वेरिएबल है। यहाँ देख रहे हो, दिस इज़ 3/2 यानी 1.5, दिस इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ योर 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो हर इंस्टेंट पे स्पीड अलग अलग है। जब स्पीड अलग अलग है तो ग्राफ आपका कर्व फॉर्म में आता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ क्या रहेगा? कर्व फॉर्म में रहेगा।